Welcome dear students. We'll discuss about chemical reactions and equations over here. Chemical change. The chemical change it is always represented by a chemical reaction. So हम इसको हमेशा कैसे शो कर सकते हैं in the form of a chemical reaction. और chemical reaction के बारे में हमें कैसे पता चलता है the reaction which is irreversible. It is mostly irreversible. हम उसको reverse नहीं कर सकते और new product की formation होती है हमेशा. जैसे अगर आप आयरन देखो फॉर्मूला होता है Fe, लेकिन हम रस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताते हैं Fe2O3 dot 10H2O या XH2O. So that means it result in the formation of a rust. Two different compounds बन गए. Similarly, milk is different from curd. फिर कर्ड जब बन गया तो वापस मिल्क में हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. अगेन अ केमिकल चेंज. Raw food and a cooked food again different from one another. Similarly, respiration. Now, respiration is considered as a chemical process because the food which we have consumed, the air we inhaled, that is being undergoing respiration within each and every cell to produce energy in the form of ATP. Product different हो गया ना, plus carbon dioxide and water. So new products are formed and that energy is used by our body. For example, if I am speaking to you, you are listening to it, we are running, walking, any action, any activity, even heart pumping, every action it requires energy, and that we get in the form of, we use in the form of ATP, adenosine triphosphate. So next is about what are the main indications that a chemical reaction has taken place or not. हमें पता भी चलना चाहिए. So first one is the change in the color. आपको याद होगा आयरन के साथ हमने सल्फर पाउडर लिया था, येलो कलर का पाउडर था. But when we heated them in the test tube, they turn grey black. That means change in color has taken place. अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को ले, वो मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, पर्पल पर्पल कलर की मेडिसिन है, और उसमें हम थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे, इट बिकम क्लियर सोल्यूशन. सिमिलरली एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. अगर जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में और हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, इट प्रोड्यूसेस अ गैस. आप देखेंगे छोटी छोटी फ्यूम्स आपको उसमें नज़र आती हैं, बट व्हाट इज़ अ गैस? If we bring a burning match stick near to it, it produces a pop sound. Remember that sound? So again a chemical reaction because evolution of gas has taken place. Change in temperature, that means when we mix something and the temperature changes, that lead to the endo or exo, we'll do later on. But change in temperature is also an indication that a reaction has taken place, a chemical one. Similarly, formation of precipitate. Now this precipitate might be a new term for you. Precipitation क्या होता है? When we take two clear solution, कुछ नहीं है इनमें, clear है बिल्कुल. When we mix them together, we see a white insoluble substance in it. The insoluble substance which is formed by mixing of two aqueous solution is known as precipitate. सो प्रेसिपिटेट क्या है? जब टू क्लियर सोल्यूशंस को मिक्स करने पे हमें कुछ इनसॉल्युबल कंपोनेंट उसमें दिखे, तो दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट. Now this chemical reaction is represented by different means. One of them is the word equation, that we write the name जो reactants हैं, with the arrow we are showing the direction and the products have been formed. Another way is chemical equation is simplest form in which the chemical reaction is represented in the short form, in the form of symbols. जो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं उनको बोलते हैं हम reactants, and the ones which are written on the right hand side is known as a product. आपको याद है मैग्नीशियम रिबन को लिया था, फिर हमने इसको बर्न किया था क्लीन करने के बाद, and it burns with which flame? Yes, dazzling white flame. dazzle थी, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर कुछ आंखों में दिख ही नहीं रहा है. So that is an indication of a chemical reaction with the evolution of heat as well as light. And the arrow represent the direction in which the reaction is taking place. Means मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से किधर को, अब अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या पता चलेगा ये रिएक्टेंट है या ये रिएक्टेंट है. सो रिएक्टेंट इज लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, एंड इन बिटवीन क्या होता है इसमें? एरो.
जितने रिएक्टेंट होंगे वो प्लस करके हम ऐड ऑन करते जाएंगे. सेकेंडली केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हुए क्या देखते हैं, उसकी स्टेट. व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. जैसे अगर मैंने सॉलिड लिखा है, वाटर का तो फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे वो वाटर है, चाहे वो आइस है, चाहे वो स्टीम है, फॉर्मूला सेम है. पर हमें क्या पता, जैसे एल्यूमिनियम को कंसिडर करो, एल्यूमिनियम कैनॉट रिएक्ट इन वाटर और विद आइस, इट ऑलवेज रिएक्ट विद स्टीम. तो अगर हमने रिएक्शन आपको बोला कि वाटर का ये इस फार्मूला लिख दिया, विदाउट गिविंग यू इन विच स्टेट इट्स गोइंग टू रिएक्ट, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, certain reactions will not be possible. So the physical state of reactant and product is shown. So solids S simple है, ब्रैकेट में शो करते हैं. liquid gases, aqueous का देखो, when we dissolve something in water that result in the formation of solution and we denote it with AQ. AQ means aqueous. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन. इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन के लिए हम दूसरी टर्म क्या यूज़ करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन. अनबैलेंस तुम्हें पता चल रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है, वी कॉल इट एज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम रहते हैं, नंबर उनका सेम रहता है. अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ही है. सो द नंबर रिमेन्स द सेम. सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्लास 9th, law of conservation of mass is fulfilled over here. Next we have to do about the types of chemical reaction. ये सारे names हमने देखे हैं, ये कौन कौन से reaction जो हैं ये हमने सारे करने हैं. combination, displacement, double displacement, then precipitation, exo endothermic and redox reaction. This we have to discuss. Let's start with the first one. That is a combination reaction. A reaction in which a single product कहाँ आता है, कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, इट्स इन द राइट हैंड साइड. तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बन रहा है ना. कितने प्रोडक्ट्स बने, ओनली वन. रिएक्टेंट कितने हैं, 2. सो व्हेन 2 or more reactant combine to form a product, we call it as a combination reaction. Now calcium oxide reacts with CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे बोलते हैं, उसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं. उसका नाम है स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आप इन तीनों नामों को ध्यान रखेंगे, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वाटर तो आपको मालूम है, देखो ब्रैकेट में स्टेट लिखी हुई है ना, एक्वस. अनदर मोर एग्जाम्पल्स आर देयर ओवर हेयर, जस्ट सी. डिफरेंट कंडीशंस आपको बोली है, 2 रिएक्टेंट है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट 1 है, ओनली ऑल दीज आर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. आई विल कम बैक टू दिस इक्वेशन अगैन. ओके, सो स्लेग लाइम सोल्यूशन बन गया स्लेग लाइम का. एंड जस्ट सी हाउ व्हेन द मिक्सिंग इज डन, हाउ द हीट इज रिलीज्ड, है ना. इसमें से हीट कैसे रिलीज आउट हो रही है, सारा धुआं धुआं हो गया. और आप कभी भी देखोगे बबल्स कैन बी सीन. सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और यू कैन सी दिस एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं. देखो जब भी वाइट वॉशिंग करती है आप देखते हो 2 या 3 दिन बाद उसमें शाइन आती है. रीज़न बीइंग जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है that combines with calcium hydroxide. ये देखो it's shown here. so जब ये इसके साथ combine कर जाती है, it result in the formation of calcium carbonate. shine आ जाएगी, marble calcium carbonate, chalk calcium carbonate. so this is a resultant of a chemical reaction which is taking place in the air. so अगर क्वेश्चन आपको आए तो आपको दोनों इक्वेशंस मालूम होनी चाहिए. all right. So here we are going to discuss about the decomposition reaction. Now decomposition reaction में क्या होता है, जो हमारा reactant है that is only a single one, just opposite to C, just opposite to combination reaction. यहाँ पे decomposition में एक single reactant है which result in the formation of 2 or more products. Now this decomposition requires energy. only then, because bonds break होने हैं, then only they are to be formed. So
These decomposition reactions are divided into three on the basis of the source of energy which we are supplying, that is heat, electricity and light. Light word is photosynthesis. Photo means light. लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस, यहाँ पे ब्रेक डाउन होना है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. चलिए, फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. यहाँ पे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो रहा है बाय हीटिंग. सो हीटिंग थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे चारकोल, कोल की हीटिंग से हम कहते हैं कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया है अ सिंगल रिएक्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट. अब देखो यहाँ ध्यान देना है, जब भी कार्बोनेट होगा कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. यू मेक इट अ हैबिट टू रिमेंबर थिंग्स लाइक दिस. आपको धीरे धीरे रिएक्शन की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी. ओके. इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है. सो डीकम्पोजिशन बेस्ट इज वाटर. वाटर के केस में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एनसीईआरटी में भी आपका इससे रिलेटेड एक्टिविटी है कि कौन सी गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कहाँ पर कौन सी प्रोड्यूस हो रही है. देखो, नेगेटिव आयन टर्मिनल कौन सा है, लाइक दिस ओवर हेयर. पॉजिटिव हेयर इलेक्ट्रोलाइट वाटर लिया है, स्लाइटली एसिड ऐड करते हैं सो दैट आयनाइजेशन, उनकी आयन फॉर्मेशन प्रॉपर हो. नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल मीन्स light we discussed. Now in the presence of sunlight the decomposition is taking place. सिल्वर क्लोराइड आता है और सिल्वर ब्रोमाइड आता है. सिल्वर क्लोराइड के केस में हम बोलते हैं Ag एंड हमारे पास फॉर्मेशन होती है क्लोरीन गैस की. और सिल्वर क्लोराइड को कंसिडर करेंगे तो इट इज़ वाइट इन कलर एंड द कलर चेंज. इसमें इसलिए बता रही हूँ कि ग्रे, जो हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था उसमें डिस्कस किया था दैट देयर इज़ अ चेंज इन कलर ऑल्सो. So and silver bromide reaction is used in the black and white photography as well. Again a chemical reaction is taking place. That means a chemical reaction where एक reactant है और product दो बने हैं, लेकिन source of energy इसके पास क्या है? Sun radiation. Got it? So such a reaction is known as a photochemical decomposition reaction. Our third type is displacement. डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक ने दूसरे को रिमूव करके उसकी जगह ले लेनी है नेचुरली. सो रिएक्शन में क्या होगा? जस्ट सी आयरन एंड कॉपर सल्फेट. हेयर व्हाट वी आर सीइंग, दिस कॉपर पोजीशन इज रिप्लेस्ड एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया? आयरन. सो जो कॉपर हुआ वो फ्री कॉपर की तरह मिल गया. सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड द कॉपर. आपने की है ये एक्टिविटी. ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में कील डाल के रखी थी, जब हमने बाद में देखा था तो उस कील के सराउंडिंग में और यहाँ पे सोल्यूशन में ब्राउन ब्राउन कलर का क्या मिल गया? कॉपर, है ना. और इसका आयरन कहाँ यूज़ हो गया? सोल्यूशन का कलर क्या हुआ? इट फेड्स. जो कॉपर सल्फेट का कलर था इट स्टार्टेड फेडिंग और हल्का स्लाइट सा ग्रीनिश कलर फॉर्म होना शुरू हो गया था. येस, दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट, अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? अपनी मर्जी से नहीं है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है कॉपर. अब कॉपर नीचे था, आयरन कितना ऊपर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है? ऊपर वाला ज़्यादा पावरफुल है, तो वो लेस पावर वाले को ईजिली रिप्लेस कर सकता है. तो अगर हम आयरन सल्फेट ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कॉपर को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? विल से नो, बिकॉज जो कम पावरफुल है वो ज़्यादा पावरफुल वाले को हिला नहीं सकेगा. ठीक है. सिमिलरली और एग्जाम्पल हैं जिंक के साथ कॉपर सल्फेट. देखो जिंक कहाँ प्रेजेंट है? अबव, ज़रा फीके से, कॉपर नीचे. इट कैन इजीली डिस्प्लेस. लेकिन अगर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और कॉपर होता और हमें बोलते कि आप इसके आगे रिएक्शन फॉर्म करके दिखाओ, ये नहीं होता. अगर हम बोलते कि जिंक सल्फेट में इसको ऐड कर दो, तो क्या हम ये रिएक्शन बोलते? इज़ इट पॉसिबल? No. Why this reaction is not possible? Because copper is less reactive than zinc in the reactivity series. Similarly, silver, nitrate and zinc. Silver is over here, zinc is above. So zinc can easily replace silver, but silver cannot displaces zinc. सो इसके बाद का रिएक्शन अगर हम करने की कोशिश करें, इसको कट कर दें और हम बोलें कि ये रिएक्शन ऐसे आगे प्रोसीड करें, ये रिएक्शन हमारे पास नहीं है. हमें रिएक्टेंट लिया
सिल्वर एंड जिंक नाइट्रेट को लिया, बोला अब इसका रिएक्शन करो, कैन यू रिप्लेस एंड फॉर्म silver nitrate? No, this reaction is not possible because silver is less reactive than zinc. I hope the concept is clear to you now. Now वहाँ एक ने अपनी position change की थी, double means two is going to change their position. Just see the color A, B, C, D. What will happen? C will go with B and A will go with D. Simple. क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय टू आयन्स, एक तो कैटायन होता है और एनायन होता है. सो वेन एवर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस द एनायन एंड कैटायन विल चेंज पोजिशन. देखो ए और सी तो आपस में आ नहीं सकते क्योंकि ये भी पॉजिटिव आयन है और सी भी पॉजिटिव आयन है ना. तो ये दोनों तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे नहीं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को ही आना पड़ेगा. सो वाइल राइटिंग द इक्वेशन यू जस्ट बी केयरफुल. फाइन. So always write cation first and anion after that. Now these reactions are further categorized into two: precipitation reaction and neutralization reaction. I gave you a few examples of neutralization. आपको वैसे भी पता है acid और base जब combine करते हैं they result in the formation of salt and water. So here I have given you few example. Just try to check it. जितने भी non metals हैं they are acidic in nature. जितने भी metals हैं they are always बेसिक इन नेचर. हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं ना तो बेसिक इन नेचर है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. सो सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन. हमने शुरू में ही बोला प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब दो क्लियर सोल्यूशन की मिक्सिंग हो. वेरी क्लियरली इट इज शोन. अब प्रेसिपिटेट देखो इनसॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है. तो उन्होंने एग्जाम्पल में आपको एक और दिया है, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ करेंगे, सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड. इसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है. सो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कैटायन और एनायन एक्वस वाटर वाला मिक्स करके है ना कंबाइन टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड. तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है किस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. लेकिन जब वही एक्सचेंज आयन्स जब बन जाए और उसके बाद कोई इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बन जाए वी कॉल इट एज अ प्रेसिपिटेट. तो एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पे देखो, सिल्वर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, वी गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पीबी लेड आयोडाइड एंड अनदर इज अ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. So here let's summarize what we did about types of reaction. Now here two reactants A and B are there and resulting in the formation of a one product. Similarly, one reactant is there AB resulting in the formation of two products. So this is combination and decomposition. Now here is a displacement, means one male will be displaced by the another male. See, they are forming a compound. Compound is constituted by a cation and a anion. So only one cation can replace the another cation. So we got a replacement reaction. Similarly, in double displacement reaction, same thing is happening. The cation will be replaced by the cation and the anion will be replaced by the anion. So we will get a different combination. Since two replacements are taking place, we call it as double displacement reaction, and here we have only one displacement. So I hope the whole thing about the combination, decomposition, displacement and double displacement is clear to you now. So here we will discuss two more types of reaction. I am comparing them, so I have presented them together on the basis of amount of heat released or absorbed. Not only heat, it's with the light also. So energy is being transferred to the surrounding. When the energy is transferred to the surrounding, we use a term for that as exothermic. Exit, बाहर निकल के आना. So there are three different examples like burning, जलाने के लिए heat is released, neutralization reaction between acid and a base, and third is tuna and water,
देखा था ना उसमें से धुआं इतना सारा, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. The next is the endothermic reaction. Endothermic is one where heat or a light heat energy basically is taken from the outside source so as to carry out the process. For example, electrolysis. Here the heat energy source of energy is electricity. Then ethanoic and sodium carbonate, we have to heat it up to bring about the reaction. कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन होगा तो वी हैव टू हीट इट, तभी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट है तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. हेयर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शंस कि वाई एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक अप एनर्जी एंड एक्सोथर्मिक रिलीजेज एनर्जी. देखो ध्यान से देखने का ज़रूरत है, डोंट गेट कन्फ्यूज, इट्स सिंपल वन. रिएक्टेंट इस पोजिशन पे है, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो हायर एनर्जी पे हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए उनको बनाने के लिए एनर्जी कम चाहिए. तो जो इसकी रिएक्टेंट की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या होगी, दैट विल बी रिलीज्ड. यस, वो रह तो सकती नहीं है, इट हैज़ टू बी रिलीज. तो जो एनर्जी रिलीज हुई तो इट बिकम्स एक्सोथर्मिक. इसी से अब यहाँ पे कंपेयर करो, रिएक्टेंट लोअर एनर्जी लेवल है, जो मतलब बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट के बीच में, उनका एनर्जी लेवल कम है. जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ, प्रोडक्ट बनाया, तो वो हायर, उनके बॉन्ड्स जो हैं तो उनके पास हायर एनर्जी चाहिए. देखो हायर लेवल पे आ रहे हैं ना, इसमें एनर्जी, इसका मतलब और सप्लाई करेंगे ताकि ये इस लेवल तक पहुँचे. सो ये क्रॉस करके अबव लेवल तक जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, एनर्जी को सप्लाई करोगे. तो व्हेन एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड इट बिकम्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. I hope it's clear to you. Here I am going to discuss few more example with you. कई बार example 2 या 3 पूछ लेते हैं तो you should remember these. Combustion, respiration, you know that. न्यूट्रलाइजेशन हमने डिस्कस किया. डिजॉल्विंग एसिड और बहुत बताया, सेकेंड लेसन में भी आपने पढ़ा. और वैसे भी हम बोलते हैं वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं, एसिड में वाटर नहीं ऐड करते बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज. सिमिलरली एल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिक्स किया था, वार्म हो गया था बीकर, दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, रस्टिंग इज़ अगेन ऑक्सीडेशन. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपने सुना है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिशन. देन endothermic, where we are supplying the heat from the outside, that is a thermal decomposition. Another example they have taken, ionic salts को जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, they need to be heated. अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, all these need to be heated up so that it can dissolve completely. Then photosynthesis reaction, yes, photosynthesis reaction जो है that is energy is absorbed in the form of सनलाइट. हमें मालूम है ना कि हम कंसिडर करते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज जितना भी फूड बन रहा है वो थ्रू फोटोसिंथेसिस ही तो बन रहा है. वी आर कंज्यूमिंग दोज प्लांट्स, बट बेसिकली द ऑर्गेनिक फूड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, राइट. एक्शन ऑफ लाइट मैंने वो डिस्कस किया था आपसे, 3 तरह की डिकम्पोजिशन में. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, सी दिस एक्शन ऑफ लाइट ऑन सिल्वर ब्रोमाइड और अ सिल्वर क्लोराइड. Another type of reaction which we have to consider here is oxidation and reduction reaction. Oxidation means addition of oxygen. ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऐड हुआ, और माइनस हुआ. किसका माइनस किया हमने, माइनस ऑफ हाइड्रोजन, यानी उससे क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. उसी तरह से रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, ऑपोजिट टू दिस, माइनस oxygen but addition of hydrogen. So whenever in a reaction hydrogen is added, then it is called reduction. Whenever in a reaction oxygen is removed, we call it as reduction. So these two terms are oxidation and reduction. If simultaneously both oxidation and reduction are taking place, we call such reaction as redox reaction. Simultaneous मतलब at the same time. Here is an example. Ferric oxide is reduced to Fe. ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, we call it as reduction. और यहाँ पे देखो एडिशन हुआ है किसका, यहाँ पे 1 है कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ 1 ऑक्सीजन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड. No doubt atoms are, molecules are there 3 and 3, but number of oxygen are more in products. So that means oxidation has
taken place. So simultaneously दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, तो उसको आप redox reaction बोलेंगे. Just see these two examples also carefully. Again, oxidation and reduction is taking place in the reaction. Now related term with this is oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent वो होता है जो दूसरे substance को ऑक्सीजन देता है और अपने आप ऑक्सीजन छोड़ देता है. उसी तरह से रिड्यूसिंग वो एजेंट वो होता है जो दूसरे की ऑक्सीजन ले ले, और उसको आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट. एक एग्जांपल देके फिर क्लियरली समझते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिमूवल हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन. अब इसी तरह से अगर आप एल्युमिनियम को देखो, एल्युमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. So when reduction and oxidation are taking place simultaneously, we call it as a redox reaction. So MnO is reducing and Al is oxidizing, aluminium is oxidizing. अब यहाँ क्लियर करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो खुद तो रिड्यूस हो गया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसलिए इस रिएक्शन में MnO क्या है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, ऑपोजिट जा रहा है. ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसको ऑक्सीजन मिल रही है, इट्स सेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज, और दूसरे की ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है. यहाँ पे कौन है ऐसा, एल्यूमिनियम इज देयर फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू टॉक अबाउट रेंसिडिटी. रेंसिडिटी इज़ व्हाट, कि फाउल, अनप्लेजेंट से स्मेल आती है खाने की कई चीज़ों में. जैसे अगर आप चिप्स लेते हैं, अगर वो पुराने हैं तो इट गिव्स स्मेल. या नमकीन को आप कंसिडर करो, या कोई स्नैक्स लो जिसमें ऑयल यूज़ हुआ हो, दैट अनप्लेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ oxidized oils, and we use a term rancidity for that. So rancidity is a physiochemical process, it's a chemical reaction, and this happens due to exposure to oxygen, light, moisture, and even by the contamination of microbes. जो रेंसिड फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए आपको बोला जाता है रोड साइड पे जो ऑयल यूज़ करके समोसे या कुछ भी आप फ्राइड चीज़ उधर से कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ हैविंग अ रेंसिड ऑयल. सो इट शुडंट बी consumed from an unhygienic place. Further, rancidity is divided into 3 categories. Hydrolytic rancidity, जहाँ पर हाइड्रोलिसिस, वाटर की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स की हाइड्रोलाइज हो रहा है. Oxidative rancidity, this is mainly you have to do in your syllabus because degradation of by the oxygen, and it is known as auto-oxidation on its own. Microbial term itself is clear, by the action of microbes, bacteria and fungi. Now there are various ways by which rancidity can be prevented by using a inert gas. जैसे आप पैकेजिंग वगैरह में देखते हो, इतने थोड़े से चिप्स होते हैं और इतनी सारी हवा भरी होती है, तो दैट बेसिकली इज़ अ एंटी रेंसिड, मीन्स एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए हैं ताकि उसकी रेंसिडिटी ना हो. चिप्स की शेल्फ लाइफ हमने पहले भी डिस्कस किया है, शेल्फ लाइफ मतलब उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सके. इसी तरह से ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स जैसे टेनिन वगैरह कई सब्सटेंसेस में यूज़ होता है. रेफ्रिजरेशन कूल में रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा. डार्क प्लेस जो सनलाइट से ऑक्सीडेशन हो रही है, रेंसिडिटी हो रही है, उसकी वजह से एयर टाइट कंटेनर मॉइस्चर गड़बड़ नहीं कर पाएगा. वैक्यूम पैकेजिंग कई बार होता है इन बिटवीन, आपने देखा बैग्स और उसमें डले होते हैं छोटे छोटे पैक शूज़ में, सो दे आर वैक्यूम पैकेजिंग. देन एंटीऑक्सीडेंट्स such as BHA and BHT, all these are helpful in preventing rancidity of substances. With this we have finished our topic related with chemical reactions and equations. I hope you are able to learn it and perform well in your exam. All the best.